BFT, which is actually based on the Byzantine generals problem. ठीक है, तो ये सेकंड कंसेंसस एल्गोरिदम था. फर्स्ट कंसेंसस एल्गोरिदम हमारा हमने पढ़ा था प्रूफ ऑफ वर्क, एंड देन सेकंड वाज बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस. द थर्ड वन is proof of stake. One minute. Okay. So proof of stake. What proof of stake? The third consensus algorithm, that is proof of stake. Proof of work में क्या हो रहा था? All the nodes that are there are work as a miner, and miner needs to mine the block, and for that it actually solves a mathematical puzzle where it tries to find out the lowest hash value for a block which is lesser than the target value, and whoever will get the hash value first share the value with other miner in the network, and then if all of them are agree to it, that block will get added into the blockchain by the miner which has found it, है ना. एंड उसके लिए उसको इंसेंटिव दिया जाता है. ये हमारा प्रूफ ऑफ वर्क था. ठीक है, वर्क किसी ने किया, उसका प्रूफ हमने सबसे कंसेंसस लिया और फिर उसका प्रूफ ऑफ वर्क के बेसिस पे उसको इंसेंटिव मिला. दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क. देन नेक्स्ट इज बाइजेंटीन fault tolerance. In that, every node in the network are working as, एक मिनट इधर आओ, कौन सा लैब है, 1 minute. हाँ, okay. So in the third consensus algorithm, we will use proof of stake. In proof of stake, it is a type of consensus algorithm which aims to achieve distributed consensus in a blockchain. ठीक है, अब यहाँ पे stake क्या है? It is a value or a money. Like proof of stake, अगर एक example लेके हम चले तो Ethereum blockchain में ये काम करता है, where we mine the Ethereum currency, cryptocurrency. There they use proof of stake. Initially, they were also using the proof of work, but afterwards, when the sufficient amount of Ethereum has been mined or sufficient amount of blocks has been added into the blockchain, then they have shifted into proof of stake. तो proof of stake में क्या हो रहा है? Only those nodes which are having more money or more value, they can contribute more, or they can actually be selected as a validator or a miner which can contribute to add a block into the blockchain. ठीक है, तो ऐसे माइनर्स जिनके पास सबसे ज्यादा जो ज्यादा स्टेक करेंगे मनी ऑन अ सर्टेन आउटकम, जिसको हम लोग स्टेकिंग प्रोसेस कहते हैं, they may become the candidate to validate the new block and earn the free
fee from it. ठीक है, the third line you can read. Nodes on a network stake an amount of cryptocurrency to become candidates to validate the new block and earn the fee from it. ठीक है. Algorithm chooses from the pool of candidate the node which will validate the new block, and this selection algorithm combines the quantity of stake. क्या क्या चीजों को लेके हम चलेंगे, कितना अमाउंट आपने स्टेक में डाला, साथ ही साथ रेंडमाइज प्रोसेस भी होगा टू मेक द सिलेक्शन फेयर टू एवरीवन ऑन द नेटवर्क. ये कैसे है आपको बता रही. कॉइन में एज बेस्ड सिलेक्शन क्या है, already taking 8th semester class. Okay, so there are two algorithms to select a node which will contribute into the block: coin age based selection and random block selection. Random block selection में क्या होगा, the validator is chosen with a combination of lowest hash value. ये तो हम लोग proof of work में भी कर रहे थे, प्रूफ ऑफ वर्क में भी कर रहे थे. प्रूफ ऑफ वर्क में हम लोएस्ट हैश वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. साथ ही साथ प्रूफ ऑफ स्टेक में एक चीज और ऐड हो जाती है, दैट इज कितना अमाउंट किसने लगाया है. लाइक जिसने जितना ज्यादा अमाउंट लगाए, जो जितना ज्यादा अमाउंट लगेगा उसकी उतनी ज्यादा हायर चांसेस हैं टू सेलेक्ट एज अ वैलिडेटर और टू ऐड ब्लॉक इनटू द blockchain. ठीक है, so the node having the best weighted combination of these becomes the new validator. तो ये random block selection है, और random में हम लोग दो फैक्टर लेके चल रहे हैं कि lowest hash value होना चाहिए जो वो फाइंड आउट करेगा with all the puzzle, and highest stake उसका होना चाहिए. ठीक है, एंड कॉइन एज बेस्ड सिलेक्शन क्यों बोल रहा है, दिस एल्गोरिथम ट्रैक्स द टाइम एवरी वैलिडेटर कैंडिडेट नोड स्टेज अ वैलिडेटर. मतलब इफ अ नोड, वो अपना उसने एक अमाउंट स्टेक पे लगाया और फिर वो अपना फाइंड आउट करने लगा हैश वैल्यू, और उसने लोएस्ट वैल्यू भी फाइंड आउट की बिकॉज इट वाज द हाईएस्ट स्टेक होल्डर इन द नेटवर्क, तो वो सेलेक्ट हो गया. वो कितनी देर से एक वैलिडेटर बना हुआ है इस पे भी डिपेंड करता है. द ओल्डर द नोड बिकम, द हायर द चांसेस ऑफ इट बिकमिंग द न्यू वैलिडेटर. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, बायस हो गया. जिसके पास ज्यादा मनी है या ज्यादा इथेरियम कॉइन्स हैं उसके ज्यादा चांसेस होंगे वैलिडेटर बनने के, अब ब्लॉक्स ऐड करने के, ट्रांजैक्शंस ऐड करने के. तो जिसका ज्यादा है वो ज्यादा ही होता जा रहा है, जिसका कम है वो उसके चांस ही नहीं आ रहा, वो वैलिडेटर बन ही नहीं पा रहा है. तो इसलिए जब इथेरियम इनिशियली स्टार्ट हुआ था, देयर आर वेरियस नॉर्मल पीपल हैव बिकम अ माइनर इन इथेरियम कॉइन क्रिप्टो करेंसी, है ना, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क चल रहा था. तो प्रूफ ऑफ वर्क में आप देखें कि आप अपना काम करो, आप अगर जल्दी करोगे, पजल जल्दी सॉल्व करोगे, हैश वैल्यू जल्दी फाइंड आउट करोगे, तो यू विल गेट इंसेंटिव. बट जैसे जैसे इथेरियम कॉइन मार्केट में आ गया, ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा हो गया, माइनर्स के पास आ गया, उसके बाद उसने प्रूफ ऑफ वर्क की जगह बोला अब हम प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेंगे. यू नीड टू stake your money into the network to become the validator. Not only getting the lowest hash value, but also you need to stake some money from it. और साथ ही साथ आप कितने देर से हो वो भी डिपेंड करता है. तो these are the two algorithm which is based on the actually for selection of a candidate node which will validate the new block to be added into the blockchain. ठीक है, तो ये है उसका वर्कफ्लो क्या बोल रहा है. मैम, मैंने बोला, हाँ हेलो, हाँ नहीं, हाँ, the screen is frozen. ओके, तो क्यों, ये अभी फिर वैसे ही होगा, मतलब अभी चेंज हो रहा है क्या. Yes, ma'am. हो रहा है, हाँ. ओके. तो अभी हम लोग वर्कफ्लो वाले स्लाइड पे है ना. Yes, ma'am. So nodes make transaction and POS algorithm puts all this transaction in a pool, जिसको हम लोग बात कर रहे थे इनिशियली, ट्रांजेक्शन पूल और मेमोरी पूल, जहां पे सारे कैंडिडेट ब्लॉक्स होते हैं. दैट कैंडिडेट ब्लॉक विल बी सेलेक्टेड बाय द माइनर to add
to validate that block, and then if it is validated then to be added into the blockchain. ठीक है, तो जिसमें इनिशियली वो होते हैं उनको हम कैंडिडेट ब्लॉक बोलते हैं, और जिसपे वो होते हैं उसको हम लोग ट्रांजेक्शन पूल कहते हैं. तो ऑल द नोड्स कंटेंडिंग टू बिकम वैलिडेटर, जिन लोग उसमें compete करना चाहते हैं, to become a validator for the next block raise a stake. उन लोग अपना एक stake money, एक money stake करेंगे. ठीक है, this stake is combined with other factor like coinage, कितने देर से वो validator है, और randomized block selection कि उसके lowest value क्या है, और lowest hash value क्या है, और दूसरा क्या बताओ, lowest hash value and highest stake. ठीक है, तो his stake still remains, इससे इन दोनों के बेसिस पे एज अ वैलिडेटर तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, बट द वैलिडेटर वेरीफाइज ऑल द ट्रांजैक्शन एंड पब्लिशेस द ब्लॉक. ये तो हमको मालूम है. हिज स्टेक स्टिल रिमेन्स लॉक्ड. उसने जो पहली बार वैलिडेटर बनने के लिए स्टेक किया था, जितना अमाउंट वो लॉक्ड होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो उसी अमाउंट को फिर से यूज कर सकता है फॉर mining the next block or to add the next block into the blockchain to become the validator. उसको अलग और कॉइन लगाना पड़ेगा apart from it. ठीक है, तो this is a task. जिसके पास ज्यादा होगा वही लगा सकता है. जिसके पास ऑलरेडी 100 है, अगर उसने 99 लगाया to become the highest stake holder, तो उसके पास अब वन ही बचा, तो बाकी तो फिर अगली बार उसका चांस आएगा ही नहीं. नेक्स्ट वाले में नहीं आएगा, बट उसके नेक्स्ट, फिर उसके बाद उसका कॉइनेज भी कम हो गया. अगर वो अगली बार सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसका कॉइनेज भी कम हो गया, है ना. तो इस तरीके से ये एल्गोरिदम्स यूज होते हैं फॉर प्रूफ ऑफ स्टेक. इसको एक बार रीड कर रही हूँ. हिज स्टेक स्टिल रिमेन्स लॉक्ड एंड द फोर्जिंग रिवॉर्ड इज ऑल्सो नॉट ग्रांटेड येट. दिस इज सो दैट द नोड्स ऑन द नेटवर्क कैन ओके द न्यू ब्लॉक. If the block is okay, the validator gets the stake back and the reward too. है ना, क्योंकि प्रूफ हमको इकट्ठा करना है. बस आपका हाईएस्ट वैल्यू होने से और आपने लोएस्ट हैश वैल्यू निकाल लिया, इससे आप आ तो गए. बिकम अ वैलिडेटर टू माइन अ ब्लॉक. आपने ब्लॉक माइन किया, बट आपने जो स्टेक किया था अमाउंट वो लॉक्ड है. ठीक है, और आपको रिवॉर्ड भी अभी नहीं मिलेगा until and unless the nodes on the network can validate that new block. And once that block is validated, तब वो जो वैलिडेटर है जिसने ये चीज फाइंड आउट की, जिसको हाईएस्ट अमाउंट मिला था, जो जिसने हाईएस्ट स्टेक किया था और लोएस्ट हैश वैल्यू उसने फाइंड आउट कर लिया, विल गेट रिवॉर्ड एंड इट्स स्टेक बैक. एल्स, अगर इस बीच में ये बात भी यहीं पे ऐड करती हूँ कि अगर बाकी लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि दिस इज अ फ्रॉड माइनर और फ्रॉड वैलिडेटर देयर इन द नेटवर्क trying to do something, मतलब कुछ मैलिशियस ब्लॉक को ऐड कर, ट्रांजैक्शन को ऐड करने की कोशिश कर रहा है, अगर वैसा कुछ है, तो अगर सभी लोग ओके नहीं बोलेंगे, वैलिडेट नहीं करेंगे, तो जितना स्टेक अमाउंट आपने लगाया था एज टू बिकम अ वैलिडेटर, यू विल नॉट गेट इट बैक. ठीक है, इवन रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा और आपका स्टेक अमाउंट भी लॉस हो जाएगा. So if the algorithm is using a coinage based mechanism to select validator, the validator for the current blocks has its coinage reset to 0. ठीक है, and this puts him in a low priority for the next validator election. If the block is not verified by other nodes on the network, जो भी मैं बोल रही थी, the validator loses its stake and is marked as a bad by the algorithm. So the process again starts from step 1 to forge the new block. तो ये डिफरेंस समझ में आया प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में. ये इस तरीके से होगा. लाइक इधर नितिन, शिवम और विजय, दीज आर द 3 people और माइनर और वैलिडेटर देयर इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क, एंड मे बी इट इज यूजिंग प्रूफ ऑफ स्टेक. तो इसमें क्या हो रहा है, वैलिडेटर स्टेकिंग सम ऑफ देयर कॉइन्स टू गेट पिक्ड अप फॉर एडिंग अ न्यू ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन. ठीक है, सेकेंड क्या है, कॉइन्स एट स्टेक इन एन एस्क्रो अकाउंट. जो भी उनका एक मेन अकाउंट होता है, उन्होंने उसमें बोला कि मुझे वैलिडेटर बनने के लिए मैंने इतना अमाउंट स्टेक किया है. देन फंक्शंस दैट रेंडमली की स्पेलिंग गलत, फंक्शन दैट रेंडमली पिक्स अ वैलिडेटर. ठीक है, तो वैलिडेटर पहले सेलेक्ट होगा, देन ओनली दैट वैलिडेटर कैन माइन द ब्लॉक और फोर्स द ब्लॉक. ठीक है, तो इसमें अगर मान लो ये जो शिवम है, दैट हैज बीन रैंडमली पिक्स एज अ Slide faces stuff. कैसे नहीं हो रही है,
Yes. क्यों ऐसा हो रहा है आज? रुको एंटायर स्क्रीन करती हूँ. ओके, यही वाली स्लाइड पे थी मैं नेक्स्ट, जिसमें दीज आर द 3 पीपल हु हैव इन्वेस्टेड, हु टेक सम मनी, सम कॉइन्स to become the validator, and then the function that randomly picks a validator will pick one of the validator among it. So Shivam that randomly picks as a validator that can add the new block into the blockchain. तो ये जो new block इसने add किया, this is the new block that has been added, and the new block is validated by the validator in the network. But अब new block add तो किया, but it has to be validated by all the validators in the network. Once it is valid, Shivam gets all its stake amount and the reward too. ठीक है, वही चीज लिखिए. अगर invalid हुआ तो it loses its stake amount or coins that it is staked before to become the validator and even didn't get any reward. तो ये है proof of stake का काम, जो एक्चुअली ये अभी आगे मैंने डाला है स्लाइड में कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है. प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन में यूज होता था, अभी भी शायद यूज होता है. ठीक है, तो ये दीज आर द डिफरेंट कंसेंसस एल्गोरिदम. धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है और आगे बढ़ रही है, अलग अलग एप्लीकेशन में लग रही है, तो डिफरेंट कंसेंसस यूज हो रहे हैं. ठीक है, तो मे बी आज आप जो पढ़ रहे हो कल कुछ और कंसेंसस एल्गोरिदम होंगे, बट यू शुड नो व्हाट इज कंसेंसस एल्गोरिदम मीन्स. बिकॉज कोई एक इंडिविजुअली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है तो कोई इंडिविजुअली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एड अ ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन. देयर आर सम वैलिडेटर्स जो अपना कंसेंसस देंगे तभी आप कुछ ब्लॉक ऐड कर पाओगे. सो दिस प्रोसीजर इज फॉर प्रूफ ऑफ स्टेक. इज इट क्लियर? आपको समझ में आया प्रूफ ऑफ वर्क और स्टेक में क्या डिफरेंस है? अभी चेंज हुआ स्लाइड, फीचर्स वाली स्लाइड. हाँ, ओके. तो फीचर्स में अब आप इसमें देखोगे तो फिक्स्ड कॉइन्स इन एग्जिस्टेंस, देयर इज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स. मूव म्यूट कर लो. There is only a finite number of coins that always circulate in the network. There is no existence of bringing new coins into existence. ठीक है, क्यों? प्रूफ ऑफ वर्क में तो हो पा रहा था क्योंकि आप फिर रिवॉर्ड देते थे. बिटकॉइन एज अ बिटकॉइन रिवॉर्ड आप दे रहे थे तो कॉइन्स और कॉइन न्यू कॉइन्स आ रहे थे. बट जब हम यहाँ पर हैं प्रूफ ऑफ स्टेक में तो ऑलरेडी इतने कॉइन्स और इतने नेटवर्क में ऑलरेडी हैं कि अब आपको न्यू कॉइन्स देने की जरूरत नहीं, बस आप एक्सचेंज कर रहे हो इससे उससे इससे उससे. ठीक है, तो नोट दैट द नेटवर्क स्टार्ट्स विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स, जो इनिशियली स्टार्ट्स विद प्रूफ ऑफ वर्क. इसका मतलब ये कि इनिशियली यू नीड टू वर्क विथ प्रूफ ऑफ वर्क. जो काम किया, जिसका जिसका कंप्यूटेशनल पावर सबसे ज्यादा लगा, उसको आपने रिवॉर्ड दिया. बट जैसे जैसे ज्यादा अमाउंट, ज्यादा कॉइन्स मार्केट में आ गए, नेटवर्क में आ गए, देन यू कैन नॉट एड न्यू कॉइन इनटू इट. ठीक है, देन यू नीड टू शिफ्ट टू प्रूफ ऑफ स्टेक. तो ये है दोनों का डिफरेंस, दोनों कंसेंसस का. ठीक है, इन सम केसेस. So this situation, initiation with proof of work is meant to bring coins or cryptocurrency in the network. Yes, यही हम बात कर रहे हैं. ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क का मेन एम ही यही है कि कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी को नेटवर्क में लेके आना. कैसे लेके आना? एज अ रिवॉर्ड फॉर द माइनर. ठीक है, to increase the number of coins into the network, then you should use proof of work. And once you get all the coins into the network, now you need not to add new coins, then you can just shift to proof of stake so that जिनके पास ज्यादा है वो लगाएं, आप काम करें और अपना चीज, हमारा काम होता रहे और वो आपस में उनका एक्सचेंज होता रहे. ठीक है, सो ट्रांजेक्शन फी एज रिवॉर्ड टू माइनर and forgers. Every transaction is charged some amount of fee. ठीक है, वही जो हम स्टेक पे रख रहे हैं. This is accumulated and given to the entity who forges the new block. If the forged block is found fraudulent, the transaction fee is not rewarded. मतलब वही जो आपने स्टेक में अमाउंट रखा है,
दैट इज अ फी दैट कैन नॉट बी रिवॉर्डेड अगर आपका ब्लॉक जो आपने फोर्ज किया है दैट फाउंड फ्रॉडुलेंट. ठीक है. द स्टेक ऑफ द वैलिडेटर इज ऑल्सो लॉस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज स्लैशिंग. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्लैशिंग. अगर आपका ब्लॉक फ्रॉडुलेंट फाउंड हुआ जो आपने फोर्ज किया है एंड यू have been one of the validator and you want to add that new block into the blockchain, और जितने validator ने find out किया कि this is fraudulent block that has been added into the blockchain, तो जो भी अमाउंट आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट था, आपने जो स्टेक किया था मनी, ये सब कुछ आपको यू विल लॉस्ट इट. ठीक है. तो यू विल लूज इट, आपको मिलेगा नहीं वापस. तो विच इज नो ऑल्सो नोन एज स्लैशिंग. एंड थर्ड फीचर, इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ द 51% अटैक. लाइक अगर मान लो अटैकर विल हैव टू ओन, अगर 51% अटैक हो गया, टू कंडक्ट अ 51% अटैक, तभी तो आप ज्यादा अमाउंट स्टेक में सबसे ज्यादा लेके आ पाओगे ना. अगर वैसा कुछ अटैक करने की कोशिश हो रही है तो टोटल जो अटैकर विल हैव टू ओन 51% ऑफ द टोटल क्रिप्टो करेंसी इन द नेटवर्क, है ना. तो ये तो इतना क्वाइट पॉसिबल नहीं है. तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. दिस डीम्स seems doing the attack too tedious, expensive and not so profitable. So there will occur problems when such a share of total cryptocurrency as there might not be so much currency to buy. ठीक है. तो ये चीजें भी पॉसिबल नहीं होगी जब आपके पास ज्यादा अमाउंट और ज्यादा कॉइन आपके नेटवर्क में है. देन यू नीड, अटैक करने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है. इसलिए जितने ज्यादा कॉइन जब आपके नेटवर्क में आ गए, आपके ब्लॉकचेन नेटवर्क में, इनिशियली तो आप प्रूफ ऑफ वर्क से काम चला सकते हो, बट आफ्टर दैट यू नीड टू स्विच टू द प्रूफ ऑफ स्टेक, बिकॉज ये आपको अटैक से भी, फ्रॉडुलेंट बिहेवियर से भी आपको हेल्प कर रहा है. ठीक है. दीज आर द फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक. सो एडवांटेज ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक, एनर्जी एफिशिएंट है. जैसा कि प्रूफ ऑफ वर्क में हम लोग कह रहे थे, वी नीड हार्डवेयर, दैट टाइप ऑफ हार्डवेयर. उनकी कूलिंग के लिए डिफरेंट हार्डवेयर चाहिए, कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको चलाने के लिए. तो ये सारा कुछ बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर ले रहा था प्रूफ ऑफ वर्क में. बट यहाँ पर क्या है, आपको कंपीट नहीं करना है, बट वही नोट कंपीट करेंगे जिनके पास ज्यादा स्टेक अमाउंट है, जिस मनी है, उतने कॉइन्स हैं. तो बहुत सारे ब्लॉक्स नहीं है. तो यही लिखा है, एज ऑल द नोड्स आर नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, ऑल द नोड्स. प्रूफ ऑफ वर्क में ऑल द नोड्स, बट प्रूफ ऑफ स्टेक में नॉट ऑल द नोड्स, दोज हु कैन डू दैट, जिनके पास उतना मनी है ना. टू अटैच अ न्यू ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन, एनर्जी इज सेव, no problem. Also no problem has to be solved as in case of proof of work system, thus saving the energy. computational power बहुत कम लगती है proof of stake में. decentralization है ना. बिटकॉइन में जैसे प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं ना, एन एक्स्ट्रा इंसेंटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल रिवॉर्ड आर इन प्लेस टू जॉइन अ माइनिंग पूल, लीडिंग टू अ मोर सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ ब्लॉकचेन. बट इन केस ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड सिस्टम लाइक पियर कॉइन, ये दे रहा है एक एग्जांपल जो चल रहा होगा मार्केट में, रिवॉर्ड्स आर प्रोपोर्शनल और लीनियर टू द अमाउंट ऑफ स्टेक. जितना स्टेक अमाउंट आपने लगाया उसी से प्रोपोर्शनल आपका रिवॉर्ड होगा. मतलब जितना ज्यादा लगाया उतना ज्यादा रिवॉर्ड, जितना कम लगाया एंड यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड देन यू विल गेट लेस रिवॉर्ड. बट आपका रैंडमाइज एल्गोरिथम इज नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू इफ यू स्टेक लेस अमाउंट, है ना. तो एक्स्ट्रा एज टू अ जॉइनिंग माइनिंग पूल, दस प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन. तो हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक में डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा है. सिक्योरिटी अभी हमने बात की, 50% ऑफ द स्टेक आपको चाहिए टू मिसलीड द नेटवर्क, है ना. तो योर नेटवर्क इज मोर सिक्योर विद प्रूफ ऑफ स्टेक, बट इनिशियली यू कैन नॉट यूज प्रूफ ऑफ स्टेक व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन इन ब्लॉकचेन नेटवर्क. दीज आर द वीकनेसेस. एक तो वीकनेस मैंने आपको बता ही दिया, इफ यू आर नथिंग टू स्टेक तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास अभी कुछ है भी नहीं. अब यू आर द न्यू वन, तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो एक वीकनेस है. तो नए लोग नहीं जुड़ पाएंगे, जो लोग ऑलरेडी पहले से थे वही लोग काम कर पाएंगे. लार्ज स्टेक वैलिडेटर, इन अ ग्रुप ऑफ वैलिडेटर candidates combine and own a significant share of total cryptocurrency. They will have more chance of becoming validator. वही सारी बातें हैं, अलग लैंग्वेज में लिखी हुई है जो हमने बात की. You need large stake to become validator. If you have nothing to stake, then you cannot become the validator. You cannot be the new one in already settled or managed blockchain network.
and it is a new technology. POS is still relatively new. Research is ongoing to find flaws, fix them, and making it viable for a live network with actual currency transaction. But Ethereum में proof of stake अब use हो रहा है, ठीक है, ये मुझे पता है. Okay, so these are the Ethereum. ये लिखा है blockchain using proof of stake, Ethereum, Peercoin and NXT. ठीक है, जिसको next भी कहते हैं. तो वेरिएंट्स ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक, दीज आर द डिफरेंट वेरिएंट्स. ये वेरिएंट्स किस बेसिस पे हैं, जैसा हमने बाइजेंटीन में देखा, जनरल बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ BFTs. इन दैट वे थोड़ा थोड़ा कंसेंसस में कुछ डिफरेंस बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन लोगों ने किया है, तो उससे डिफरेंट वेरिएंट्स बन गए हैं. ठीक है, तो रेगुलर प्रूफ ऑफ स्टेक, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, लीज्ड प्रूफ ऑफ स्टेक एंड मास्टर नोड प्रूफ ऑफ स्टेक. आप जब अपना कुछ ब्लॉकचेन नेटवर्क में जा रहे हो, आप अपने किसी एप्लीकेशन में लगा रहे हो, आप जो कंसेंसस एल्गोरिथम डालोगे, यू मे बी यूजिंग सम ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ द ओरिजिनल और स्टैंडर्ड, लाइक या तो प्रूफ ऑफ वर्क से करोगे, या प्रूफ ऑफ स्टेक से करोगे, या बाइजेंटीन यूज करोगे, या जो आगे हम लोग पढ़ने वाले वो यूज करोगे. तो उसके आगे आप अपना कुछ और एक कंडीशन लगाओगे, तो आप उसका एक अलग नाम दे दोगे. तो लाइक दैट दीज आर द डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक. तो इंडिविजुअली अगर आपको पढ़ना है तो आप डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक को पढ़ सकते हो, बट बाकी सब एप्लीकेशन ओरिएंटेड है. तो ये इट कैन बी चेंज, आप नेम भी अलग कर सकते हो, तो उसको पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक. एक बार आप रीड करिए, सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की. डायग्राम भी तो डाला था इसका. ठीक है, क्लियर है. तो एग्जाम में अगर पूरा थ्योरेटिकल ही है आपका बिटकॉइन ब्लॉकचेन, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में डिफरेंस क्या है. वंस द यूनिट 1 विल बी कंप्लीटेड, ये मैं स्लाइड आपसे शेयर कर दूंगी, और इसको मैं अपडेट भी कर दूंगी. जो चीजें मैंने, ये हम ऐसे पढ़ा रही थी तो मुझे लग रहा था कि पढ़ा तो दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोग को याद रहेगा. ठीक है, क्योंकि इसके नोट्स भी आप लोग को ऐसा कुछ मिलेंगे नहीं, बुक्स में भी कहीं एक जगह है नहीं, तो आई नीड टू मेक नोट्स. तो आई हैव डिसाइडेड कि आई ट्राई टू मेक नोट्स इन पीपीटी, सो दैट दोनों चीजें हो जाए, क्लासेस भी हो जाए और आपका नोट्स भी क्रिएट हो जाए, आपको इधर उधर देख ज़्यादा ढूंढना मत पड़े. ठीक है, बट देर आर सम बुक्स वेयर फ्रॉम वेयर इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन ब्लॉकचेन, देन यू कैन लर्न फ्रॉम देयर. देर आर फ्यू बुक्स, आई विल बी शेयरिंग दैट इन गूगल क्लासरूम इन दिस वीक. ठीक है, और एक और बात, आई विल टेक वन quiz after completion of unit 1. Maybe today or tomorrow we'll be completing unit 1. Then I'll be taking just a quiz multiple choice question then that you need to attempt within a 5 minutes during the class only, maybe on Wednesday or Thursday. ठीक है. Then the next consensus algorithm that we can cover because we have time, proof of authority. So proof of authority is POA. ठीक है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में, अथॉरिटी से क्या समझ आ रहा है, आप किसी को अथॉरिटी पहले से, आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया, आपने ऑथराइज कर दिया, यू आर द वैलिडेटर, वी ऑथराइज यू टू ऐड द ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन. ठीक है, तो इसी तरीका का कुछ कंसेप्ट है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में. तो दिस कंसेंसस व्हिच प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस एंड फॉल्ट टॉलरेंस, इट वाज प्रपोज्ड इन 2017 बाय इथेरियम फाउंडर को-फाउंडर गेविन वुड. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं,
इज इट विजिबल? सबको दिख रहा है ना प्रूफ ऑफ अथॉरिटी वाला स्लाइड? So in blockchain platform, consensus mechanism can be divided into permissionless, जो हम लोग इथीरियम और बिटकॉइन में कर रहे हैं, and permission also, that is hyperledger और इथीरियम private blockchain. नेक्स्ट क्लास मैं यही बताने वाली हूँ, what are the different types of blockchain. ठीक है, तो प्राइवेट पब्लिक बोलने का क्या मतलब है ब्लॉकचेन में? So there are two types of consensus mechanism that we use, permissionless and permission. So unlike permissionless blockchain where anyone can become node, but in permission blockchain all nodes are pre-selected in permission blockchain. So this allows to use consensus types with high scalability and bandwidth. ठीक है, so one of this consensus type is proof of authority, जो हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं. तो what is working style? This is working of, पहले इसको पढ़ लेते हैं. In proof of authority, rights to generate new blocks are awarded to nodes that have proven their authority to do so. अब authority मतलब क्या? These nodes are referred to as validator, जो हम लोग अभी से हमेशा से बात करते आ रहे हैं. They run software allowing them to put transactions in block. ठीक है, व्हाट आर दोज सॉफ्टवेयर्स, वही हमको आगे देखना है. तो वो सॉफ्टवेयर रन करने की अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं नोड्स के पास है जिनको हमने पहले से प्री सेलेक्ट करके वैलिडेटर बना के रखा है. सो ओनली दोज नोड विल गेट चांस टू जनरेट न्यू ब्लॉक्स. ठीक है, दिस इज प्रूफ ऑफ अथॉरिटी. होता कैसे ये हम लोग अभी देखेंगे. सो द प्रोसेस इज ऑटोमेटेड and does not require validator to be constantly monitoring their computer, but does require maintaining the computer uncompromised. वो जो सॉफ्टवेयर जो चल रहा है, जो रन हो रहा है उन वैलिडेटर्स कंप्यूटर में, उनको मेंटेन उनकी मॉनिटरिंग की जरूरत है, बट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में कर रहे थे. ठीक, तो पीओ इज सूटेड फॉर बोथ प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट ब्लॉकचेन एंड पब्लिक ब्लॉकचेन. ठीक है, वेयर ट्रस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स हैं एंड दोज, मान लो बहुत सारे हैं और ये 4 जो हैं सेलेक्टेड एज अ वैलिडेटर, इनके पास अथॉरिटी है. ठीक है, तो ट्रस्ट है. तो वेयर ट्रस्ट इज, द ट्रस्ट इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ नेटवर्क अमंग दीज, ये बोल रहा है सर. तो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी कंसेंसस एल्गोरिथम लिवरेजेस वैल्यू ऑफ आइडेंटिटीज, which means that block validators are not staking coins. अब यहाँ पे स्टेक नहीं कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, उनका खुद का रेपुटेशन आप वो अपने आप स्टेक कर रहे हैं कि अगर वो कहीं गड़बड़ हुए, उनके द्वारा जो ऐड कर रहे हैं जो ब्लॉक, वो जो है फ्रॉडुलेंट है, तो ये उनकी अथॉरिटी पे जाएगा, उनके रेपुटेशन में जाएगा. दोज नोड विल बी आउट फ्रॉम द ब्लॉकचेन इफ इट इज फाउंड. ऐसा नहीं कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपने जो स्टेक किया वो मनी नहीं मिलेगा, बट नेक्स्ट टाइम यू कैन ऐड अ ब्लॉक और यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट. नो, in proof of authority, if you have become as a validator and you are allowed to add the block into the blockchain, and if it is identified that something wrong is done by you, then it is your reputation. ठीक है, तो पीओ इज सिक्योर्ड बाय ट्रस्ट ऑन द आइडेंटिटी सेलेक्टेड. तो ये इस तरीके से हो रहा है. डायग्राम दिख रहा है सभी को, डायग्राम वाली स्लाइड पे है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, यूजर्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएट ट्रांजैक्शन. अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी आपको मैंने बताया नहीं है, यूनिट 2 का पार्ट है ये, तो अभी सिर्फ सुन लो, बट समझ में आ रहा है. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो यूजर्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएट ट्रांजैक्शन व्हिच आर सबमिटेड टू द नेटवर्क ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस. सो इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑफ अप्रूव्ड वैलिडेटर, जो ऑथराइज्ड हैं, कंटिन्यूअली रिसीव्स ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट फॉर इंक्लूजन इन द नेक्स्ट ब्लॉक. यही तो होता है, ये जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनके बेसिस पे ये सारे ब्लॉक्स, ये सारे कैंडिडेट ब्लॉक्स है. दीज ऑल आर द कैंडिडेट ब्लॉक्स ट्राइंग to be added into the blockchain. For that they contact to a validator in a peer-to-peer network for approved validator to be included in the blockchain. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, an algorithm assigns one validator node as primary. किसी एक वैलिडेटर नोड को प्राइमरी वो असाइन कर देता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए.
The primary validator node assembles the transaction into a block and confirms its validity. क्योंकि वो उसका काम है वैलिडेटर का, एक नोड जो प्राइमरी नोड हम एल्गोरिथम ने चूज किया है वो उसको करेगा. द रिमेनिंग वैलिडेटर, जो और वैलिडेटर्स थे जिनके पास प्रूफ ऑफ अथॉरिटी है, व्हाट दे विल डू, द रिमेनिंग वैलिडेटर नेटवर्क कंफर्म्स द प्राइमरी नोड्स ब्लॉक. अगेन क्योंकि ये कंसेंसस है, ऑल्दो उसके पास अथॉरिटी है, प्राइमरी वैलिडेटर भी है, एल्गोरिदम ने ही चूज किया है और वही वैलिडेट किया, बट अगेन यू नीड वैलिडेशन फ्रॉम ऑल अदर वैलिडेटर इन द नेटवर्क. ठीक है, द रिमेनिंग validator network confirms the primaries nodes block and with consensus achieved, अगर आपको मिलता है, the energy web chain is updated with a new block. This block will be added into the blockchain. ठीक है, तो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में वी आर नॉट गोइंग टू स्टेक एनी मनी, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अवर कंप्यूटेशनल पावर टू सॉल्व अ मैथमेटिकल पजल. Instead, we give an authority in a net to a peer-to-peer network that we will not do any wrong work. ठीक है, फॉर दैट हमको आप पे करिए और हम लोग इसको सिक्योर करके रखेंगे पूरे नेटवर्क को. जो भी ब्लॉक हम ऐड करेंगे वो ब्लॉक कोई भी फ्रॉडुलेंट नहीं होगा. अगर होगा तो ये मेरे आइडेंटिटी पे बात आती है, आप हटा सकते हो लाइक दैट. ठीक है, सो दिस इज प्रूफ ऑफ अथॉरिटी. इज इट क्लियर? सब थोड़ा थोड़ा एक जैसे, बस कुछ कुछ चीजें डिफरेंस है. ठीक, तो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी जो मेनली यूज होता है, जो आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, उसमें क्या होता है? इट इज एन अटेम्प्ट टू मेक एन ऑनलाइन सर्विस अनअवेलेबल बाय ओवरवेलमिंग इट विथ ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. तब वो होता है डॉस अटैक हम जिसको बोलते हैं. ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में अगर वो अटैक हो रहा है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस बोलते हैं. एन अटैकर सेंड्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड ब्लॉक्स टू टारगेटेड नेटवर्क नोड इन एन अटेम्प्ट टू डिसरप्ट इट्स ऑपरेशन. इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन आप भेज रहे हो उस मेमोरी पूल में, उस ट्रांजेक्शन पूल में, कि वो पूरा नेटवर्क उसको सर्विस दे ही नहीं पा रहा है या ओवरफ्लो हो जा रहा है लाइक दैट. ठीक है, टू मेक इट अनअवेलेबल, कि भाई अभी जितना है उसी को कर लें, आगे तो हो नहीं पा रहा. तो उसको करने के चक्कर में पूरा जो नेटवर्क है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है ब्लॉकचेन का, उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है. तो proof of authority mechanism makes it possible to defend against this attack because network nodes are pre-authenticated. Block generation rights can be granted only to nodes that can withstand DOS attack. तो ये जो node add हो रहे हैं network में as a validator in a proof of authority consensus, वो बोल रहे हैं कि we ensure you that our system will not be compromised any time. मतलब उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, they will take care of it. वो आपको मनी दे रहे हैं टू ऐड द ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन नेटवर्क में, बट बीइंग अ नोड, बीइंग अ वैलिडेटर, यू नीड टू ensure that कोई किसी भी तरीके का अटैक नहीं होना चाहिए. यू नीड दैट टाइप ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन योर कंप्यूटर. ठीक है, और ये कि ऑलरेडी अथॉरिटी है तो वही करेंगे. तो सब लोग, सारे नोड, अगर किसी एक नोड को वो डिस्टर्ब करता है सर्विस, तो सब उन सारे नोड का होना जरूरी नहीं है, बिकॉज दोज नोड्स आर वेरी सेफ. ठीक है, सो इन पीओए कंसेंसस 51% अटैक रिक्वायर्स एन अटैकर टू ऑब्टेन कंट्रोल ओवर 51% ऑफ द नेटवर्क नोड. सेम जैसा प्रूफ ऑफ स्टेक में था. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 51% अटैक फॉर द प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस टाइप, where an attacker needs to obtain 51% of the network computational power. और प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या था? 51% ऑफ द स्टेक वैल्यू आपको चाहिए, तब आप जाके बोलोगे हाँ मेरे पास 51% स्टेक है, उस एक तो हर बार मैं ही बनूं स्टेक करने के लिए, मैं ही ऐड करूं ब्लॉक को, तब आप ब्लॉक कर सकते हो, अटैक कर सकते हो. प्रूफ ऑफ वर्क में आपके पास नेट इतना ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर होना चाहिए जो 51% नेटवर्क को रन करने के लिए चाहिए, तब आप ज्यादा, मतलब आप तब बोलोगे कि आई एम द 51% स्टेक होल्डर ऑफ दिस ब्लॉकचेन नेटवर्क. ठीक है, वैसे ही प्रूफ ऑफ अथॉरिटी कंसेंसस में 51% अटैक रिक्वायर्स एन अटैकर टू ऑब्टेन कंट्रोल ओवर 51% ऑफ द नेटवर्क नोड्स. है ना, जितने अथॉरिटेटिव नोड्स हैं जिनके पास अथॉरिटी है
उनमें से 51% को आपको अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, या फिर आपको वो सारे नोड आपके होने चाहिए, तब आप जाके कुछ गलत कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात है इसमें। तो दीज आर द टू मेन कॉमन अटैक्स जो जिससे हम लोग प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के साथ हम लोग बच सकते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ पीओए कंसेंसस: हाई रिस्क टॉलरेंस एज लॉन्ग एज 51% ऑफ द नोड्स आर नॉट एक्टिंग मैलिशियसली। ये आपको मालूम है, क्योंकि 51% नोड को आपने अथॉरिटी देके रखी है, दैट यू आर द नोड और द वैलिडेटर हु कैन ऐड ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन। और आपके पास आप ये इंश्योर करिए कि आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसे सिक्योरिटी मैकेनिज्म होने चाहिए कि कोई भी मैलिशियस ब्लॉक ऐड ना हो पाए ब्लॉकचेन में। ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम एट विच न्यू ब्लॉक्स आर जनरेटेड इज प्रिडिक्टेबल। ओके, देखो इसमें क्या बोल रहा है, हमारा प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या हो रहा था कंसेंसस में, आपको पता नहीं कि कब कौन सा नोड कितना ज्यादा टाइम लेगा टू माइन अ ब्लॉक, है ना, टू गेट दैट लोएस्ट हैश वैल्यू। जब मिलेगा तब होगा, तो यू नेवर नो द टाइम वेरीज, है ना, फॉर एडिंग अ न्यू ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन। बट हियर बिकॉज आपको मालूम है 51% लोग हैं, बहुत ज्यादा कुछ अथॉरिटेटिव नहीं चाहिए, कुछ ज्यादा अलग से कोई पजल नहीं सॉल्व करना है, बस आपको उसको सही सॉफ्टवेयर चलाना है, चेक करना है सही ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं, 51% से वैलिडेशन लेना है, एंड देन इट्स ओके। सो इंटरवल ऑफ टाइम एट विच न्यू ब्लॉक्स आर जनरेटेड इज प्रिडिक्टेबल इन प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, हाई ट्रांजैक्शन रेट होगा, जितनी जल्दी जल्दी ब्लॉक्स ऐड होंगे डेफिनेटली हाई ट्रांजैक्शन रेट होगा, इसमें ज्यादा आप ट्रांजैक्शन ऐसे नेटवर्क में आप जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन कर सकते हो क्योंकि ब्लॉक्स जल्दी जल्दी ऐड हो रहे हैं, प्रिडिक्टेबल टाइम में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सस्टेनेबल भी है। सस्टेनेबल की बात हम लोग कल एक बार और करेंगे, क्योंकि सारे कंसेंसस एल्गोरिदम में हमको बात करनी पड़ेगी उस स्केलेबिलिटी से रिलेटेड इशू। ठीक है, कि जब स्केलेबल बनाना है, क्योंकि जैसे जैसे नोड बढ़ते जाएंगे तब क्या कौन सा वाला कंसेंसस ज्यादा हेल्पफुल होगा, ये अपन कल बात करेंगे। ठीक है, फार मोर सस्टेनेबल देन एल्गोरिदम लाइक प्रूफ ऑफ वर्क विच रिक्वायर कंप्यूटेशनल पावर। ठीक, एंड दीज आर द लिमिटेशन. It is not decentralized, but it is just an effort to make centralized system more efficient. जब आपने already authority दे दी है तो फिर decentralization का meaning क्या? ठीक है, तो that's a limitation कि आप बोल रहे हो it is a decentralized network, distributed network, but actually आपने कुछ ही सिस्टम को अथॉरिटी दे के रखी है, तो अगेन एक अलग एफर्ट दिख रहा है, एफिशिएंट बना रहे हो आप सेंट्रलाइज सिस्टम को, बट एक्चुअली इट इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड वन. Proof of authority, validator are visible to anyone. Knowing validator identity could potentially lead to third party manipulation, है ना. तो उस ब्लॉकचेन नेटवर्क में कौन कौन एज अ वैलिडेटर काम कर रहा है, कौन कौन से नोड, ये आपको पता होता है. इट इज विजिबल टू एनीवन. तो कोई भी थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन हो सकता है, कोई ज्यादा पैसे देके उसको खरीद सकता है या उसमें चेंजेस कर सकता है कि ठीक है. तो ये सारी चीजें लिमिटेशन है. अगर अथॉरिटी आप दे रहे हो तो दैट नीड टू बी सिक्योर, या फिर बोला चाहिए आपको हाइड करके रखना पड़ेगा, तो मे बी इट विल गो इन अनदर वे. ठीक है, दीज आर द एप्लीकेशन. इट मे बी अप्लाइड इन वेराइटी ऑफ सिनारियो. जैसे अपना सप्लाई चेन हमने जो पढ़ा, वो सप्लाई चेन में हम प्रूफ ऑफ अथॉरिटी रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से डेटा जा रहा था. हमने देखा था कौन सा एग्जाम्पल लिया था, पेट्रोलियम वाला. ठीक है, तो पेट्रोलियम वाले में जैसे जो जो इन्वॉल्व है उन सब में हर एक जगह हम एक नोड को अथॉरिटी दे सकते हैं टू, अगर वहां से ट्रांजेक्शन ऐड हुआ है, ब्लॉक ऐड हो रहा है, तो वो उसको अथॉरिटी देगा, सो दैट अदर्स कैन वैलिडेट देन एंड देन इट कैन बी एडेड. So it helps to maintain the companies to it helps companies to maintain their privacy while availing benefits of blockchain technology, है ना. Microsoft Azure is another example where POA is being implemented. Azure platform provides solution for private network with system that does not require native currency like gas on Ethereum. ठीक है, होगा कोई करेंसी, आई डोंट नो एक्चुअली, सिंस देयर इज नो नीड फॉर माइनिंग एज योर नोड्स आर प्री सेलेक्टेड. सी दिस सब्जेक्ट इज लाइक इट हैज नॉट बीन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड. इट इज ऑन रिसर्च एरिया ना, अभी सब कुछ इस पे रिसर्च चल रहा है. जो बोला जा रहा है वो भी करेक्ट है कि नहीं पता नहीं, बट जितना इम्प्लीमेंट हो चुका है उसको करेक्ट लेके हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं, है ना. तो
डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बोल देना भी इसके लिए सही है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, लेकिन बट देर आर सम एप्लीकेशंस वेयर वी कैन डेफिनेटली चेंज द ओवरऑल नेटवर्क पैराडाइम टू ऐड ब्लॉकचेन देयर, वहां पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है, दैट्स वाई रिसर्च टॉपिक है, ठीक, जो स्टार्ट हुआ 2009 जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था यूएसए में, तब से जो स्टार्ट 2008 7 में आया, 2008 में बिटकॉइन से ये स्टार्ट हुआ था क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन नेटवर्क, जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो, है ना, जिसका अभी तक किसी को आता पता नहीं कि वो है कौन, दिखता कैसे है नहीं पता, बट उसने बोला कि ये मैंने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, एंड देन उसने हैंड ओवर किया अपने पूरी टीम को, और फिर पता नहीं क्या है, ठीक, तो लाइक दैट चल रहा है वो एक टेक्नोलॉजी जिसको हम लर्न कर रहे हैं सो दैट वी कैन बिकम, अगर आपको ये सारी चीजें पता होगी तो कल के डेट पे आप जहां खड़े हो, अगर इफ दे वांट टू इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यू शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निकल डिटेल्स दैट यू नीड टू नो टू डिस्कस दैट पॉइंट, ठीक है, फिर एक सॉलिडिटी इसका एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप कोडिंग कर सकते हो, जो चीजें आप पढ़ रहे हो आप उसको कोड कर सकते हो, फॉर दैट यू नीड टू लर्न अनदर सिंटेक्स और अनदर लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट द कोड, ठीक है, एक और बचा है, अभी टाइम क्या हुआ है 11:40 हो गया, ओके, तो नेक्स्ट सर की क्लास है, तो प्रूफ ऑफ इलेप्स टाइम ये एक बचा है, और फिर स्केलेबिलिटी पे बात करेंगे, देन यूनिट 1 एंड हो जाएगा, तो कल हम यूनिट 1 को एंड करेंगे, और वेंसडे आई विल बी टेकिंग अ क्विज ऑन यूनिट 1, ठीक है। सेक्शन ए 4 सेक्शन ए, बताओ प्रेजेंटीज कौन कौन है सेक्शन ए? मैम रोल नंबर 2 अदीबा। रोल नंबर 2 मैम रोल नंबर 5 5 मैम 8 8 मैम रोल नंबर 10 10 बोलो जल्दी जल्दी। मैम रोल नंबर 12 12 सेक्शन ए जल्दी जल्दी बोलो। मैम रोल नंबर 66 66 मैम रोल 21 एक सेकेंड, क्या है कबीर तुम्हारा? 21 21 ओके। मैम 43 25 है। यस मैम 43 43 मैम 67 67 हो गया सेक्शन ए। 45 70 45 70 69 मैम 63 69 किसका है? मैम 16 60 प्रवीण क्या है तुम्हारा? माइक ऑन करने के बाद थोड़े बाद में बोला करो। हाँ 69 मैम 69 तुम्हारा है, ओके। 65 मैम मेरा हाँ, और याशी मैम तुम्हारा? 63 63 ओके, हो गया सेक्शन ए। यू कैन लीव सेक्शन ए। सेक्शन बी मैम रोल नंबर 5 5 7 हम्म 7 7 मैम 13 13 मैम 18 18 69 69 52 52 मैम 59 एक एक करके बोलो। मानस क्या? मैम 28 28 63 और 64 यमन का 60 है ना? ठीक है 64 रोहित यस हाँ मैम 59 59 ओके, जिनका हो गया लीव करो। 39 मैम 39 सेक्शन बी 39 यस मैम ठीक
ठीक है, नवनीत, प्रीति 68। ठीक है, आप लीव कर सकते हो।